नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। So Pradeep ji, the Israel-Iran war proves one thing, which is very, very clear. There's been an MI6 leak. MI6, as you know, is the British intelligence agency. Yes, yes. There's been an MI6 leak that perhaps one of the generals, one of the Iranian generals, was killed in such a lethal manner, in such a focused, targeted manner. बिल्कुल बिल्कुल. By the Israelis. Yes, yes. Because of a watch which was presented to him by the newly anointed field marshal आसिम मुनीर। आसिम मुनीर साहब ने जनरल साहब को एक वॉच दी और उस वॉच के अंदर there was a homing beacon, yes, जिसकी वजह से the Israelis were actually able to target him. Now we don't know how far it is true, but everybody is carrying so it. you have to be absolutely sure, especially in that particular leadership, the top leadership, when we take gift from anybody, you are opening yourself to any kind of attack. So there's only it only leads me to one conclusion: never accept a gift from a Pakistani. You don't know what's going to happen to you. So not only a Pakistani, but at that particular stage, I think his intelligence must have told him that don't take this watch, don't wear this watch. Well, he was wearing it and he was killed. And just like a lot of other people, I think 5 Iranian generals have been killed, 3 scientists, and the Iranians have retaliated and retaliated brutally. I mean, quite a large section of suburban Tel Aviv has been destroyed, yes, and yes, so on yes. and so forth. लेकिन एक चीज तो बड़ी साफ है. Now we know why Mr. Donald Trump was in such a hurry for a ceasefire here. Now everything is clear. They knew that the war was on. Israel-Iran war was on. They knew that Israel is going to strike them. They knew that we need Pakistan in this particular, because India is very, very clear in these things. I don't think they would have given our air bases for any kind of activities. Nothing. We would never have done it. Because no. we have maintained our steadfastness where that is concerned. And they always knew that they couldn't take India for granted like they can take Pakistan. No, so it's all planned. Now, the very invite of Asif Munir and US Army Day shows I believe how much today. importance That's he's given today, to, right? That's today, right? Yes. Saturday 15th. Bilkul. Yes, 15th of June. He's supposed to be there today. Yes. On Trump's birthday. So everybody is very well sure that it was just because of this that Pakistan has been kept closed. They've given them all the kind of facilities they can. They've given them all the finance they can. चाहे वो World Bank के through हो, Asian Development Bank के through हो, just with the hope that Pakistan should stay in us. And the way Iran has said, we're not only going to strike Israel, but we're going to strike the friends of Israel. So the first friend of Israel, which comes to know, is US. They might, strike the US residents. That's what they say. Anywhere in the world. Now that, when Iran says, that is something you can't take it very lightly, because Israel itself has a lot of US residents out there. US के बहुत सारे residents Israel में हैं. Around 700,000. Yes, 7 lakhs. That's right. Yes, 7 lakh residents. लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि ईरान भले जो मर्जी कह रहे हैं, I don't know what is the actual ability of the Iranians to hit back in a proper manner. I'm not really sure. लेकिन एक चीज तो बड़ी साफ है साहब. Let's go straight across to our guests. And here I really feel proud as an Indian. I feel very, very proud. देखिए साहब, Israel has the best technology in the world, the best. We also got it from the Israelis. Yes. विनायक अंबेकर साहब, नमस्कार. Thank you very much. आपका स्वागत है सर शो में. So nice of you, sir. गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए. पूजा मिश्रा जी, as usual, great pleasure having you on the show, ma'am. नमस्कार. पूजा जी नमस्कार. अब अंबेकर साहब, मैं ये कह रहा था अभी कि मैं बड़ा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता हूं कि इजराइल, जिसके पास सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, सबसे जबरदस्त एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, न जाने क्या कुछ है. There were at least 10 to 15 very heavy ballistic missiles of the Iranians that got through. And हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मिसाइल, एक उनका ड्रोन, only one drone got through, only one, which hit a house in Firozpur of the Pakistanis. और पाकिस्तानियों ने कोई 800 के करीब
मिसाइल्स और ड्रोन चलाए हिंदुस्तान के खिलाफ, नॉट वन गॉट थ्रू, नॉट वन हिट एनीबडी, देयर वाज नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ अ ड्रोन. आई फील रियली एंड ट्रूली प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, सर. Vinayak Ambekar साहब, would you like to say something on this? Please go ahead, sir. Yes, sir. Our forces are very much prepared. Every Indian takes pride in our forces, definitely. जी, और ये जबरदस्त काम हुआ है, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. दो हाउ इट विल अफेक्ट द एंटायर रीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई डोंट नो. इस इलाके में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बिकॉज ऑफ द इजराइल ईरान वॉर, दैट वी डोंट नो. जी प्रदीप जी, आप अंबेडकर साहब, खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जयराम रमेश, एक ही पॉइंट आउट कर रहे, वी वांट टू हाईलाइट द डिप्लोमेटिक फेलियर वेयर बीजेपी इज कंसर्न, नरेंद्र मोदी साहब इज कंसर्न. दे से यूएस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वहां पर बुला दिया, इनवाइट कर दिया है ऑन यूएस आर्मी डे. और जिस प्रकार से उनका रेजोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया, इसे कभी इतिहास में नहीं हुआ. वी आर अमंग वन ऑफ द 19 कंट्रीज दैट एब्सटेन वोटिंग 149. तो दिस 149 कंट्रीज हैव वोटेड. तो क्या ये डिप्लोमेटिक फेलियर्स है? हाउ डू यू सी इट अंबेडकर साहब? बिकॉज कांग्रेस इज टारगेटिंग डिप्लोमेटिक फेलियर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. अंबेडकर साहब, ये सब पूरा जो है वो ब्लफ है, इसको कोई वैल्यू देना नहीं है. डिप्लोमेसी जो है वो कांग्रेस के कहने से नहीं होती है, या कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो वीक है. उनको खाली मोदी जी को टारगेट करना है, उतना ही काम वो कर रहे हैं. डिप्लोमेसी उसके जगह पे है, चल रही है. इंडिया का जो इंडिपेंडेंस आज पूरे अमेरिका के सामने उन्होंने रखा है कि हम तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे, हम हमारे बलबूते पे, हमारे फोर्स के बलबूते पे, हमारी ताकत पे चलेंगे. ये अमेरिका को मालूम है, तो अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर रही है. ये पूरी दुनिया देख रही है. कांग्रेस को खाली समझ में नहीं आता है, तो उनका ये वीकनेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं. तो अंबेडकर साहब, इसके पहले कि मैं पूजा मिश्रा जी के पास जाऊं और उसके बाद गोपाल तिवारी साहब के पास जाऊं, आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं, आप तीनों लोगों के सामने. सर, ऐसा है, भारत ने शुरू से, अभी की बात नहीं है सर, ये अभी की बात नहीं है. हम वाजपेयी जी की बात करें, उसके पहले इंदिरा जी की बात करें, राजीव गांधी जी की बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, और अभी तो खैर हमने किया ही है. कितने डॉसियर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखे, कितनी बार हम लोगों ने यह दिखाया कि पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आज भी आप देखें अंबेडकर साहब, पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट सेल जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया. आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन उसको मिल गया. वर्ल्ड बैंक हैज प्रॉमिस्ड अ $40 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट. एडीबी, दैट इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, हैज प्रॉमिस्ड समथिंग मोर. नाउ माय पॉइंट इज, दिस इज माय पॉइंट एंड दिस इज माय व्यू, ऑफ कोर्स द व्यू ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल. जहां तक भारत का सवाल है, एक बात तो बिल्कुल तय है सर, कि भारत को इतना ताकतवर बनना पड़ेगा, इतना ताकतवर बनना पड़ेगा कि हमें किसी की आवश्यकता ना पड़े, जैसे कि अभी अभी प्रदर्शित हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एंड यू वुड नो दिस वेरी वेरी वेल विनायक अंबेडकर साहब, जो अभी टैरिफ टॉक्स हो रहे थे यूएसए के साथ, द इंडियंस हैव वेरी क्लियरली सेड नो, वी डू नॉट एग्री विद यू. द इंडियन डेलीगेशन हैज टोल्ड द अमेरिकन्स, वी डोंट एग्री विद योर टर्म्स, वी कैन गो टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके सामने हम लोग रख सकते हैं, these are our terms, we don't agree with your terms. Or our delegation got up and left. They said we would rather not have trade, we will not have slave trade. विनायक अंबेडकर साहब, अब आप जवाब दें इसका. जी, क्योंकि भारत ने उसके अल्टरनेट सब जो है वो ढूंढ के रखे हुए हैं, और भारत आज अमेरिका पे इतना डिपेंडेंट नहीं है जैसा पहले होता था. भारत आज डिक्टेटिंग टर्म्स पे है, ये अमेरिका को भी मालूम है. और ट्रम्प साहब का जो पॉलिसी चालू है, आज एक बात करना, कल उसको पीछे लेना, और ट्रम्प के जो आज उसके देश में जो परिस्थिति है वो इतनी खस्ता है, उसकी इतनी वीक पोजीशन है कि वो खुद के बड़े प्रॉब्लम से पूरा भरा हुआ है, घिरा हुआ है. तो इंडिया तो अपना स्टैंड जो है वो पक्का रखेंगी, और इंडिया अपने को जैसा चाहिए वैसा डील अमेरिका से करके लेगी. ये आज नए इंडिया की ताकत है. एब्सोल्युटली. पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जहां तक भारत का प्रश्न है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई फिलिस्तीनियों के हक में हमने पहली बार वोट नहीं दिया,
वी हैव एब्सटेन्ड। ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी एक बार वी हैव एब्सटेन्ड। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एब्सटेन पहले नहीं किया है, कर चुके। माई पॉइंट इज दिस, आज की तारीख में बार बार मोदी सरकार को इसके ऊपर अटैक करना कि गाजा के ऊपर जो भी चल रहा है और फिलिस्तीनियों के विषय को लेकर के, जैसे भारत एक जमाने में इट यूज्ड टू बी अ स्टैंडर्ड जोक, आई रिमेंबर दिस बिकॉज वी यूज्ड टू कवर ऑल द मिडिल ईस्टर्न एम्बेसीज इन दिल्ली, इट यूज्ड टू बी अ स्टैंडर्ड जोक। इसके पहले कि कोई अरब एम्बेसी कुछ बोलती, भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो पहले बोलना शुरू कर देता था पैलेस्टीन के फेवर में, एंड इट ब्रॉट अस nothing and it brought us no support from anybody। किसी भी अरब देश ने पहले कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हिंदुस्तान का फेवर कभी नहीं किया, एक सदाम हुसैन को छोड़ करके, और किसी ने नहीं किया। डोंट यू थिंक मैम, अब वक्त आ गया है भारत को बिल्कुल अपनी स्वतंत्र नीति को परस्यू करने का, कि भले वो इजराइल हो, भले वो अमेरिका हो, भले वो यूएसएस, भले वो रशियन फेडरेशन हो या चाइना हो, वी विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गुड फॉर अस। मैम आप बताएं। पूजा मिश्रा जी। नमस्कार, प्रदीप जी को भी नमस्कार और साथी प्रोक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज लग रहा है कि आज समय आ गया है कि भारत देश को वो देखकर करना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर हो। ये तो मुझे लगता है कि यूएस से बहुत सीखने वाली बात है कि आप दुनिया में कुछ भी होता रहे, यूएस ये करता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है, उसके लिए किसके साथ में बिजनेस करना बेस्ट है, उसके लिए किसके साथ में टैरिफ को बढ़ाना बेस्ट है, उसके लिए किसके साथ में टैरिफ को घटाना बेस्ट है, वो उस हिसाब से कार्य करता है। आपने जब ये चर्चा की कि हम फिलिस्तीन की जो है पहले भी सपोर्ट किया करते थे, पर कोई भी अरब कंट्री हमारे सपोर्ट में नहीं आया, तो मैंने आप ही के डिबेट में एक बार चर्चा करते हुए बताया था कि जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम इस कंडीशन में नहीं होते कि हम बहुत सारे कंट्रियों पे वार कर सके, पर हाँ हम इस कंडीशन पे जरूर है राजीव जी कि हम वो चीज कर सके जो हमारे लिए बेनिफिट हो, क्योंकि हम कितना भी किसी के साथ में जाकर के सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे या हम पहले बोलेंगे, हमने इतिहास से ये सीखा हुआ है कि जब हमारी बारी आएगी हम कितना भी डायलॉग जो है साइन करके रखे रहे, तब जो है ये जो देश है वो हमारे पक्ष में नहीं बोलती हैं, वो तब डिप्लोमेसी में आ जाएंगी, तब उनके संबंध जो हमारे विरोधी देश है उनसे भी अच्छा हो जाएगा और हमसे भी अच्छा हो जाएगा। वो कहेंगे हम मीडिएशन करना चाह रहे हैं, या फिर जो है दोनों तरफ जो है लोग समझदार हैं, ये समझदारी के साथ में कर ले। तो ये जो डायलॉग, अगर मुझे तो लगता है कि कुछ डायलॉग जो साइन किए गए हुए हैं उनको भी अभी जब आपने बताया कि नहीं, हमारे डेलीगेशन ने कहा कि हम टैरिफ जो है अपने अकॉर्डिंग अपने शर्तों पे करेंगे, हम चले जाएंगे वर्ल्ड ट्रेड के पास में, लेकिन हम आपके शर्तों पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए। जब आपने देख लिया कि हम जब देश लड़ रहा था और हम जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में थे उसमें से एक भी कंट्री आकर के हमारे पक्ष में खुले तौर पर एक बयान नहीं दिया, तो ये एंड अप कर देना चाहिए ताकि ये देश को, दुनिया को पता चले कि इंडिया अब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि अगर आप हमारे लिए नहीं खड़े हो रहे हो तो हम अपनी शर्तों पे सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए कार्य करेंगे। और ये इतने सालों में सीख लिया हुआ है कि आपके ऊपर अगर कुछ आने वाला है, बिकॉज वी आर द ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो हिंदू है और हिंदूज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत कम है। तो अगर आपको लगता है कि आज हिंदू के साथ में गलत होने लग जाएगा तो वर्ल्ड खड़ा हो जाने वाला है, नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटीज अलग अलग हैं और मेजोरिटी के साथ में धर्म, ये इसको डिनाई नहीं किया जाता, ये फैक्चुअल है राजीव जी कि अगर वार होता है, नुकसान होता है, तो कंट्रीज जो होती हैं वो देखने लग जाती हैं कि कहाँ पे किसकी जो है संख्या ज्यादा है, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर जो है इस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो हम उनके सपोर्ट में रहेंगे, इधर वी विल कीप मम, अदरवाइज कि हम बोलेंगे तो उन्हीं के सपोर्ट में बोलेंगे। तो बेहतर होगा कि भारत इस डायरेक्शन में ही काम करे और आज नहीं। हम हो सकता है कि पहले मुझे लगता था कि हम इमेच्योर हैं, हमारे अंदर गर्म खून है, हम समझते नहीं है आईआर को, तो हमें लगता है कि नहीं भारत देश को अपना डिसीजन लेना चाहिए, और अभी भी यही लग रहा है। तो लग रहा है कि ये सही डायरेक्शन है, देश में काम होना चाहिए कि हम अपने शर्तों पे काम करेंगे। डिप्लोमेसी को जितने मेंटेन करने की जरूरत है बस उतना ही मेंटेन किया जाए, उससे ज्यादा। 11 साल बेमिसाल मोदी जी के, योगी जी के 9 साल बेमिसाल जबरदस्त तरीके से, मगर अखिलेश यादव जी ने कहा कि ना 11 साल बेमिसाल है ना 9 साल बेमिसाल है। दे हैव फेल्ड इन उत्तर प्रदेश इन पावर, हेल्थ केयर, लॉ एंड ऑर्डर, हर क्षेत्र में डिक्लाइन हुआ है। ना हाउ यू जस्टिफाई दिस, बिकॉज
11 साल तो बेमिसाल के आंकड़े दे रहे हैं, मिडिल क्लास अपलिफ्टेड वगैरह। पूजा मिश्रा जी, अगर जो है मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन किया है जो गवर्नमेंट ने या भाजपा सरकार ने, उनको सेलिब्रेशन करने की बजाय में मंथन करना चाहिए था। मंथन करना चाहिए था कि 11 साल में 22 करोड़ रोजगार हमने दिए क्या, जो हमने कहा था कि हर साल जो है 2-2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, नहीं दिया हुआ है। हमने कहा था कि हर व्यक्ति की आय दोगुनी कर दी जाएगी, नहीं हुआ है। और हमने कहा था कि रोजगार की बात पे कर ली, हमने कहा हुआ था कि मेट्रो ट्रेन हुई, हमारे पास में बुलेट ट्रेन चलने लग जाएंगे। बुलेट ट्रेन की चर्चा अभी तक भी नहीं है। अभी अगर मई का रिसेंट न्यूज उठा करके देखेंगे तो उसमें कहा गया हुआ है प्रदीप जी कि जो आपका वंदे भारत बनाए हुए वही कंपनी 2-3 महीने में हो सकता है कि बुलेट ट्रेन पे भी काम करना चालू कर दे। इन्फ्लेशन का कोई कमी नहीं आया हुआ है, पर विडंबना ये है ना कि इन्फ्लेशन और श्रिंकफ्लेशन दोनों ही साथ में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें जितना इन्फ्लेशन दिख रहा है ना, रियलिटी में वो श्रिंकफ्लेशन प्लस होकर के वो इन्फ्लेशन और ज्यादा है। और ये इनका फेलियर है। ये जो माइन्यूट टेक्निकल चीजें हैं ये गवर्नमेंट को पता है, और ये सब पता होने के बाद भी अगर वो सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे लगता है शर्म की बात होगी कि आपको सेलिब्रेशन नहीं, आपको मंथन करना चाहिए था कि हम कहां कहां किन ग्राउंड पर सक्सेस हुए, किन ग्राउंड पर फेलियर हुआ। एजुकेशन के मामले में आपका फेलियर हुआ है। अभी तक आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी कहां कहां पर इंप्लीमेंट कराया हुआ है, 50% भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया हुआ है, आपने बस बना दिया हुआ है। आपने यूजीसी का फंड घटाया हुआ है, आपने हेल्थ सेक्टर का फंड घटाया हुआ है, तो कहां से बढ़ोतरी हो रही है। अगर क्राइम में देखेंगे तो क्राइम में भी कहीं पे जो है ऐसा नहीं हो कि बढ़ोतरी हो रखी है। और 45 इयर्स में भारत देश का पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8% है। तो आपको ये विडंबना है, आपको जो है इस पे देखना चाहिए कि ये कैसे 45 सालों में। और ये आपका जो है पिरामिड हमारे भारत देश का अगर पॉपुलेशन के हिसाब देखेंगे तो अपराइट है। जी पूजा मिश्रा जी, एक छोटी सी बात है, आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं चाहूंगा कि आपका ओपिनियन इस पे। गोरखपुर में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गीडा जिसको बोलते हैं, वहां की जो सीईओ हैं वो अनुज मलिक हैं। वो कहती हैं कि 12,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है गोरखपुर और गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ लास्ट 3 इयर्स में। 12,500 crores only in and around Gorakhpur, ma'am. Now that is huge. That is absolutely huge. और she says, बिल्कुल आप she says 3,500 एकड़ हैं हमारे पास लैंड बैंक में, और 250 एकड़ ऑलरेडी इमीडिएटली एलोकेट हो चुका है। मैम पूजा मिश्रा जी, राजीव जी ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मुझे आप ही के द्वारा मिल रही है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो है एमओयू तो साइन होते चले गए हुए हैं। मैम दिस इज ऑफ यस्टरडे, दिस इज यस्टरडेज न्यूज़ मैम, कल का है ये कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अनुज मलिक जी हैं, शी इज द सीईओ ऑफ द गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उन्होंने कहा है कि अभी तक 12,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है मैम, इट इज देयर इन द बैंक। उसकी जो पहली ट्रांच जो थी ऑब्वियसली टोटल 12,500 करोड़, जो पहला 1,000 करोड़ है वो आ चुका है। अब आप बोले मैम। जी राजीव जी, अभी आपने कहा कि पहला 1,000 करोड़ जो है आ गया हुआ, जिसमें से 12,000 करोड़ था। हालांकि अभी इस इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज आप कह रहे कि उन्होंने बोला हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, हो सकता लैक ऑफ नॉलेज होगा मेरे पास में। पर हाँ, एमओयू जो है उत्तर प्रदेश में साइन होते रहे हैं, पर साइन होने के बाद में वो धरातल पर नहीं पहुंचे हुए। ऐसे भी एमओयू साइन हुए हैं जहां पे साइन होने के बाद में कंपनी ही भाग गई है। पता चलता है कि जो कंपनी को हमने 200 करोड़ रुपए दिए, इवन करोड़ों रुपए जो जिनसे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर के लेकर के भाग गए हुए हैं। अब ये जो है किस तरीके से कहा जा रहा है कि इतना आया हुआ है, मुझे लगता है इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि सबमिट हो नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट सबमिट भी हो रही है। इन्वेस्टमेंट सबमिट होने के बाद में ऐसे कंपनीज भी आ रही हैं जो फेक कंपनीज है, इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर के चले जा रहे हैं, उसके बाद में उनको रोका जा रहा है, पर इन्वेस्टर्स के पैसे जो है बर्बाद होते चले जा रहे हैं। एमओयू भी फिर से इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई थी राजीव जी कुछ दिनों पहले, और उसका भी एमओयू साइन हुआ है, पर धरातल पे नहीं पहुंच रहे हैं। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, आप बताएं, क्या आपको लगता नहीं है कि पिछले 11 साल में कोई भी तरक्की हुई है सर? मतलब जरा भी तरक्की नहीं हुई? आप बताएं सर। खड़गे साहब, राहुल गांधी साहब, उनको सब खराब ही दिखता है सर। गोपाल तिवारी जी।
अब आप बताएं सर प्लीज। अब ये देखिए ना, हमारा जो डीआरडीओ है, मैं छोटी सी एग्जांपल देखता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमारा जो आकाश तीर सिस्टम है और बाकी जो हमारे इंडिजिनस सिस्टम है, और तो और छोड़िए, द रशियंस आकर के बोल रहे हैं कि यार तुमने S-400 यहां पे कैसे इस्तेमाल किया, हमें बताओ, क्योंकि हमसे इस्तेमाल नहीं हो रहा। सर उसके लिए भी आप मतलब वो आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे? गोपाल तिवारी जी बताएं प्लीज, बोले सर। सर आपका फोन म्यूट पे है सर, म्यूट पे है। सर अनम्यूट करिए ना अपने आप को। यस, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ सर, बोलिए। राजीव जी, प्रदीप जी, हमारे विनायक जी और पूजा जी, सबको नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता था कि 11 साल के बारे में जो पूजा जी ने वास्तवता जो परे रखी है वो बिल्कुल सही है। उसके बारे में बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि अभी विनायक जी अम्बेडकर जी ने जो बताया था कि भाई कांग्रेस हमेशा मोदी जी को ये करती है, तो क्या कारण ही नहीं ना कोई। और देखो, हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का फर्ज बनता है कि सरकार की कमियों को जवाब दे। अगर वो जवाब पूछे, अगर वो संसद के लिए सत्र बुलाने का सुझाव दे, तो हम तो कोई ऊपर से गिरे नहीं है ना। इसी देश की जनता ने जो मेजोरिटी को इनको चुन के दिया है सेकंड टाइम, 14 से 24 तक का मोदी जी का हालात सब देख के, कांग्रेस के 100% सीट को बढ़ावा दे के कांग्रेस को अपोजिशन लीडर बना के मजबूती दी है सब देश की जनता ने 10 साल मोदी जी के देखते हुए भी। और वो चुनाव के बारे में कैसे, वो सब बात अलग है। और ये मैं कहता हूँ कि मोदी जी से कोई जाति दुश्मनी है तो नहीं, लेकिन सवाल पूछना, अगर संविधान के अनुसार उसकी जवाबदेही निश्चित करना, उसके प्रति प्रश्न उठाना, ये तो कोई गलत नहीं है ना सर। ये कोई आपस का मामला तो है नहीं, देश का मामला है। आजादी, देश आजाद हुआ है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, हमारी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है। और दूसरी बात अभी कहा उन्होंने कि इससे पहले अमेरिका के ऊपर देश जितना निर्भर नहीं था, अभी उतना निर्भर नहीं है। बट मेरे को वो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं मेरे ख्याल। अमेरिका के साथ जो देश अभी जितना डिपेंडेंट है, बल्कि उसके बजाय ऐसा कहना चाहिए उससे पहले कभी नहीं था सर। वो G7 के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में उस समय ओबामा में कहा था, G7 के इसमें कहा था कि जब भारत बोलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को संबोधित करते हुए कहा था, जब भारत बोलता है तो पूरा मतलब दुनिया सुनती है, ऐसे कहा था उन्होंने, अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद भी अभी कनाडा से हमें इन्विटेशन कैसे आया, क्या आया, लेट कितना आया, ये सब बातें समझो। अमेरिका के बारे में, जो पहले हम ईरान से तेल खरीदते थे तो कोई अमेरिका के दबाव में नहीं था सर, बिल्कुल। और इसके पहले भी जो चुनाव, इसके पहले भी अपनी बातें हुई है, जब पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा संघर्ष हुआ, तो हम कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आए, यही इतिहास है हमारा। इनफैक्ट आज 12वीं बार जब ट्रम्प बार बार हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमको और पाकिस्तान को एक इसमें लाके खड़ा कर दिया है। अननेसेसरी कश्मीर का प्रश्न पाकिस्तान का जो है वो इंटरनेशनलाइज किया है। उनके आर्मी डे के अमेरिका के और पाकिस्तान के हमारे अमीर को बुलाए सर। मतलब ये क्या मजाक है? मतलब हमारी विदेश नीति क्या है? हम इतने हमारी बुरी स्थिति कभी भारत की नहीं थी जितनी आज हो रही है सर। मतलब हम क्या चाहते हैं इसमें? गोपाल जी, क्या बीजेपी टॉप लीडरशिप हैज टेकन स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस ऑफ नाना पटोले जी स्टेटमेंट? नाना पटोले जी ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर विंदूर कुछ नहीं है, ये किड्स वीडियो गेम है, उसमें क्या बीजेपी का पूछ रहा है आपसे, क्या आर्मी पर्सनल को आपने बच्चे बताया? किड्स कौन है? ये वीडियो गेम है क्या? नाना पटोले ने आर्मी ऑपरेशन सिंदूर का इस प्रकार से अपमान करना, बीजेपी हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन टू दैट। यू कांट डू दैट। राहुल गांधी हैज बीन डूइंग इट, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी खड़गे सब बंद कर दिया, अब नाना पटोले ने शुरू कर दिया। गोपाल तिवारी जी। सर, नाना पटोले की जो उसके बारे में जो मुलाकात है वो मराठी में है, मैंने पूरी सुनी है। उसमें उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, उसमें वो कह रहे थे कि उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो घटनाक्रम क्रोनोलॉजी बता रहे थे, उसके बाद में ये बोले कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे मीडिया में, गोदी मीडिया में ऐसे सब कुछ चल रहा है कि जो हमारे वॉशिंगटन न्यूज़पेपर में हमारे ऊपर बहुत ही क्रिटिसाइज हुआ है
कि कराची ये हो गया, वो हो गया, वो सरेंडर आ गए, कराची पे हमने हमला कर दिया। ये क्या बातें आ रही है सर? ये कोई कंप्यूटर का वार है क्या? ये वास्तव वार है। ये हमारी मीडिया को और देश को नीचा दिखाया गया है। वॉशिंगटन में, पूरे दुनिया में हमारे देश की छवि इतनी धूलमिल, मतलब इतने नीचे स्तर पे गई है कि ऐसे मीडिया पे हम अपने आप को कोई बच्चों का मजाक है क्या, या कंप्यूटर गेम है कि इसको सब टीवी चैनलों पे गोदी मीडिया के जो भी हिंदी चैनल है, इंग्लिश चैनल है, सबके नाम लेके वॉशिंगटन में वो आर्टिकल आया है और ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रम्प बार बार कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान, हमने सीरियसली पेश आना I'd like to चाहिए, know. हमारे I'd like देश to में ask. One संसद सत्र बुलाना गोपाल तिवारी चाहिए, जी, सीरियसली पेश आना चाहिए, कुछ अगर बातें आपकी करनी इजाजत चाहिए। हो, यही कहा उन्होंने। अगर इट डजंट मीन गोपाल तिवारी जी, दैट कि कंप्यूटर शो है, ये ऐसा उसका मतलब नहीं हो राइट, सकता। वी गॉट दैट सर। गोपाल तिवारी जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, उसके बाद मैं विनायक अंबेकर साहब के पास जाऊंगा। ये जो आप बोल रहे हो ना कि वॉशिंगटन में इतना क्रिटिसिज्म आया, ये आया, वो आया, कौन से पेपर्स में आया सर? वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स पोस्ट में में? आया अरे सर, मैं आपको गिना देता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो हेरल्ड 7 जून का रिव्यू, सर, 7 जून का। सर तो पूरी सब बात, जगह सर है। पूरी बात सुन लें। कई लोगों ने अरे सर उसके पूरी ऊपर, बात तो सुन लें। न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, वॉशिंगटन पोस्ट में आया, वॉशिंगटन रिव्यू में आया, द न्यूयॉर्कर में आया, सैन फ्रांसिस्को हेरल्ड में आया, हर जगह पर आया, फॉक्स न्यूज में आया, सीएनएन में आया, उन्होंने भी मजाक उड़ाया, बीबीसी ने भी मजाक उड़ाया। अब मेरा सवाल सुने सर, ये वही लोग हैं जिन अखबारों का और टेलीविजन चैनल्स का मैंने नाम लिया है ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, कभी भी सद्दाम हुसैन जो है पूरी दुनिया को उड़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। किसके कहने पे? जॉर्ज W बुश जूनियर के कहने पे, जिसकी वजह से दोबारा इराक के ऊपर अटैक हुआ। क्या क्रेडिबिलिटी है इन लोगों की सर? किनकी आप बात कर रहे हैं? दीज अमेरिकन न्यूज़पेपर्स, दे आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। व्हाट आर यू टॉकिंग? हिंदुस्तान को अगर ये क्रिटिसाइज करते हैं, मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं कि हमारे आवर चैनल्स वेंट ओवरबोर्ड, बट सो व्हाट, इट हैपेंस इन द फॉग ऑफ वॉर, इट हैपेंस, सो व्हाट। आज भी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स यही कह रहे हैं ना कि दे वन ए विक्ट्री, जैसे 1971 वॉर भी पाकिस्तान ने जीती थी। और आपको बीबीसी के बारे में तो मैं बता दूं, और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में भी, 1971 में ना ये लोग कह रहे थे कि कैसे ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के छक्के छुड़ा दिए हैं। They were all saying the same thing, and very next day the Pakistani army surrendered. तो सर उनको तो आप कोर्ट ना ही करें। अब आप बोलें सर, गोपाल तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। सर मैं ये बोलता हूं कि whatever had been show on Indian channel, had it been not so, it would have been not told. अगर ये ऐसे बोल सकते तो ये नहीं आता था। ये पहले सद्दाम हुसैन की बात है, ये वास्तवता है क्या नहीं? TV9 बोलो, मैं तो नाम लेता हूं इसका, ये नहीं थे क्या? ये टीवी पे नहीं आया था क्या? ये अगर वो आया तो है सर, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं ऐसे तो सर। गोपाल तिवारी जी, लेट मी कंप्लीट। अगर हमारे सेना के जो चौहान जी थे, उन्होंने और कोई एक अफसर है, उन्होंने कहा कि हमें क्लैरिफाई करने के में हमें बहुत समय उसमें स्पेंड करना पड़ा कि ये सब बातें ये नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। गोपाल तिवारी जी, यू आर राइट। जो मिलिट्री आई डोंट डिसएग्री, ये प्रेजेंटेशन सर इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ऐसा गोपाल तिवारी जी, इसमें क्या डिसएग्रीमेंट है? जो अफवाह है गोपाल तिवारी जी, में भी हम, अरे सर अब आप बोले जाएंगे क्या? एक सेकंड सुन तो लीजिए ना। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपका क्रिटिसिज्म एक्सेप्टेबल है और वाजिब है और रिस्पेक्टेड है। डोंट कोट दीज अमेरिकन पेपर्स, आई डोंट केयर व्हाट दे से सर, दे आर अ बंच ऑफ लायर्स, हॉरिबल पीपल। किनकी बात कर रहे हैं आप? विनायक अंबेकर साहब, अब आप बताएं, आप मुझे ये बताएं, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, if I remember correctly, in 2014 we were a 1.67 or 1.87 trillion economy, if I'm not mistaken. Today we are a 4.87 trillion dollar economy within 11 years. We are the fourth largest economy in the world at the moment.
in terms of industrialization, we have really picked up. Sir, Apple is manufacturing here, Samsung is manufacturing here, practically every major phone company is manufacturing here except for Huawei. और ये भी आपको बता दूं सर, अंदर की बात है, पता नहीं आप मेरे से एग्री करेंगे या नहीं, I don't know whether you are allowed to say it or not. We are actually talking to the Chinese. I think there's a new deal which is probably going to be signed with China, where जो अभी $100 billion का जो हमारा डेफिसिट है ना, $104 billion का, it will come down to $80 billion. That's what I've been told. अब आप बोलें सर, प्लीज, विनायक अंबेडकर साहब. देखिए, ये लोगों की जो मोदी विकृति है वो इतने निचली स्तर पे गई है कि ये वॉशिंगटन पोस्ट को कोट करने लगे, जिन्होंने इंदिरा जी के समय में भारत की जितनी खामियां निकालनी थी, जिसका कांग्रेस को सहारा लेना पड़ता है मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए. करने दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दुनिया को और भारतीयों को मोदी जी के ऊपर गर्व है, भारत के ऊपर गर्व है. और ये जो विकृत लोग हैं, जो नाना पटोले जी है, इसकी क्या लेवल है. एक जमाने पे कांग्रेस को छोड़ के वो भाजपा में आया था और इतना झुका हुआ था, और राजीव गांधी जी को और इतना राहुल गांधी जी को इतनी गालियां देता था, वो आज जाके उनका हीरो बन गया है. और ये इनको सपोर्ट कर रहे नाना पटोले को. भाजपा में आया था क्या? नहीं, क्यों आया था भाजपा में? और भाजपा में आके कांग्रेस के लीडरशिप को कितनी गालियां देता था, कितने निचले स्तर पे जाके गालियां देता था. ये सब रिकॉर्ड है, पूरा मीडिया में रिकॉर्ड उपलब्ध है. और ऐसे जो निचले स्तर में गए हुए गिरे हुए लोग हैं, ये इनके लिए बहुत उच्चतम स्तर के लोग हैं. तो रहने दो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं ये भारतीयों को समझता है, और मोदी जी क्या बोल रहे हैं ये भारतीयों को समझता है. हमको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अंबेडकर साहब 11 साल बेमिसाल, और आपने पूरे आंकड़े दिए. यू हैव ऑलरेडी फर्निश्ड जनधन हो, पीएम आवास हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हो, आयुष्मान, पीएम किसान, शौचालय 25 करोड़, आपने हर चीज का आंकड़े दिए. Every detailed information is given to the public at large. But Congress and Akhilesh Yadav ji कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किधर भी जाओ, उत्तर प्रदेश is flooded with Chinese products. Chinese, तो आपका Make in India scheme is a failure. That's what they claim. That even Rahul Gandhi says Make in India failure. फिर एम्प्लॉयमेंट का मिसाल दे रहे. रिसेंटली गुजरात में एम्प्लॉयमेंट था 14,000 पोस्ट के लिए, 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया. 14,000 पोस्ट के लिए 14 लाख पीपल. 8 lakh people. So they are highlighting this as failures of Prime Minister Modi. How do you want to comment on that? Ambedkar साहब. सर, पहले जो दूसरे हमारे पैनलिस्ट है, लेडी पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने थे और उन्होंने दिए नहीं. 11 साल में हमने 34 करोड़ लोगों को ये जो लोन दिया है, मुद्रा लोन, ये एक रोजगार का साधन है. और 34 करोड़ लोन जब बांटे जाते हैं तो 34 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको रोजगार कहा जाता है, वो मिलती है. और उसमें से कम 10% तो ऐसे लोग हैं जो खुद के व्यवसाय में और लोगों को रोजगार देते हैं. तो हमने 40 करोड़ लोगों को रोजगार खाली ये जो लोग है मुद्रा कर्ज योजना जो है उसके थ्रू दिया है. आपने अभी सही बात किया, ये बोलते हैं कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो गया. तो राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट है जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत 400 प्रोडक्ट जब डिफेंस में इसमें रिजर्व कर दिए कि ये भारत की ही कंपनी बनाएंगी, तो हमने 1.25 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट, खाली डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए हैं. और उसमें से 21,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट हमने वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए हैं. ये आंकड़े सब पूरे पार्लियामेंट के फ्लोर पे है. और 21,000 करोड़ रुपए के जो डिफेंस इक्विपमेंट हमने बेचे हैं वो पूरे दुनिया को मालूम है. अभी सपा के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश पे सिमटे हुए हैं ना. उनकी नज़र कहाँ जाती है वर्ल्ड पे. एक 1.25 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट हमने मैन्युफैक्चर किए और भारत की सेना को दिए. मैंने खुद ये जो बुमला टॉप करके अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर है उसमें खुद गया था 2 महीना पहले, और हमने इतने इक्विपमेंट से उन लोगों को लेस कर दिया है. तो हमको जब वो चाइना का बॉर्डर दिखाया गया तो जो कमांडेंट था जो हमारे से बात कर रहा था
उसको मैंने पूछा कि 10 साल पहले आपको क्या इक्विपमेंट मिल रहे थे और अभी क्या इक्विपमेंट मिल रहे हैं, तो उसने बोला हमारे को 10 गुना ज्यादा इक्विपमेंट मिल रहे हैं। पहले हम बंकर्स जो थे वो स्टोन के बनाते थे, अभी इग्लू जैसे बंकर्स हमको बना के दिए हुए जिसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। एक फौजी भाई उधर जा रहा था ड्यूटी पे, उसके हाथ में ऐसा एक टिफन था, वो टिफन सर मतलब जो थर्मस टाइप का टिफन था जिसमें खाना 12 घंटा गर्म रहता है। तो सब पूरा डिफेंस के लिए इतना सुविधा बनाए हैं और वो सुविधा बनाया डिफेंस को अच्छी तरह के इक्विपमेंट दिए करके हमने पाकिस्तान को उनकी जगह खाली एक दिन के वॉरफेयर में बता दी। और जैसा आज इजराइल ने बोला कि हमारा काम हो गया है, वैसा भारत बोलने के स्थिति में था कि हमारा काम हो गया है। सिर्फ 2 घंटे का स्ट्राइक किया तो पूरा पाकिस्तान जमीन पे आ गया। और ये जो बोल रहे गोपाल तिवारी साहब कि ट्रम्प का बहाना बोल रहे, ट्रम्प हर दिन अपना स्टेटमेंट बदलता है। दुनिया में कोई भी कंट्री ट्रम्प पे भरोसा नहीं रखता है, खाली कांग्रेस पार्टी है जिसको विकृति हो गई है मोदी की, वो ट्रम्प के बहाने पे मोदी के ऊपर शरसंधान कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया मोदी के ऊपर खुश है, तो इनको जिसमें खुशी है उनको मिलने दो, उनको ट्रम्प के स्टेटमेंट में खुशी है तो वो खुश रहने दो, हमको कोई तकलीफ नहीं है उसको। अंबेडकर साहब, पूजा मिश्रा जी और गोपाल तिवारी जी, यहां मैं आपको बता दूं, आई एम ए विटनेस टू दिस बाय द वे सर। 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आपको मालूम है लद्दाख में लेह से आगे कोई रोड नहीं थी, मालूम है सर आपको? लेह से आगे कोई रोड नहीं थी, म्यूल ट्रेन से सारी की सारी सप्लाई जाती थी। अरुणाचल में कोई रोड नहीं थी। अब क्या है, राइट अक्रॉस द चाइनीज बॉर्डर वी हैव रोड्स एवरीवेयर। और उस वक्त लॉजिक क्या था ये भी आपको बता दूं, लॉजिक ये था कि अगर हम सड़क यहां पर बनाएंगे तो चाइनीज अटैक होगा तो दे विल बी एबल टू यूज आवर रोड्स। अब आर्मी ने कहा वी विल नॉट लेट द चाइनीज कम इन, व्हाई डू यू वांट टू सब्जेक्ट अस टू दिस? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर पहली बार नॉर्थ ईस्ट हैज बीन कनेक्टेड बाय रेलवे। वो रेलवे का जो नया ब्रिज बनाया ना सर ब्रह्मपुत्र के ऊपर, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन कनेक्टेड बाय रेलवेज। नंबर 2, there's one small thing here, PM Mudra Yojana, over 52.5 crore people have received loans amounting to 33 lakh crores and 68% of these beneficiaries are women. I just wanted to put that across. जी, पूजा मिश्रा जी, you wanted to say something. Please go ahead, ma'am. बोलिए। हालांकि ये मुद्रा लोन की बात कर लेते हैं पहले। मुद्रा लोन में जो आप कह रहे हैं मुद्रा लोन दिया गया, उसका सक्सेसफुल रेट कितना है? जितने भी लोन दिए गए, मैं मानती चलिए लोन आपका एक स्टार्टअप हो गया। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री को जीविका और रोजगार में फर्क नहीं पता है, उनको लगता है पकौड़ा तलना जो है रोजगार है, जो कि वो जीविका है। तो मुद्रा लोन में फेलियर रेट आपका जो है 80% 90%, जितना भी लोन है सारे के फेलियर रेट 89% 90% है। 10% ही जो है सक्सेसफुल है। उसके बाद में आपने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में रेलवे गया पहले। I didn't interrupt you. With due respect, kindly respect my time the way I respected you. Kindly respect my time the way I respected yours. Whatever you were saying, I just listened it calmly. I listened it calmly, and it's a fact. It's a fact. The success rate of you provided is just 10%. The success rate of all the loans you provided is just 10%. Banks has the all details, and I have been through all these details. I do have friends who are bankers. They have provided. I can provide you the list of Allahabad where the list of NPA is very high. Let me answer. I didn't interrupt you. Kindly do respect my time. जी बोलिए ना मैम। एंड राजीव जी, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में जो है अभी रोड बनने लगे हैं, रेलवे पहली बार वहां पे कनेक्ट हुआ है। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैंने अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th किया हुआ है, तो मुझे पता है कि अरुणाचल प्रदेश में कब ट्रेन अभी आई है कब नहीं थी। पर आप ये भूल गए कि पहले अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करने वाला ब्रिज ही नहीं था। जी नहीं था। आप जब ग्रोथ की बात कर रहे हो, आपको जब हम जो है पिछली सरकार ने असम से अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करके जो ब्रह्मपुत्र में जो है इतना ब्रिज बना दिया, तब जाकर के अरुणाचल प्रदेश और असम कनेक्ट हुआ। वरना अदरवाइज रात में अगर रात हो गई, डिलेड हो गई, सनसेट हो गया हुआ है, तो आप असम से अरुणाचल प्रदेश नहीं आ सकते थे किसी भी हालात में। उसके बाद में जो दूसरा ब्रह्मपुत्र बना है, जो लार्जेस्ट ब्रह्मपुत्र है, जो कि आलूबारी हो गया है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, वहां से कनेक्ट करता है, वो भी पिछली सरकार ने बनाया हुआ था। तो जब आपको अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने का साधन मिल जा रहा है, देन यू आर गोइंग फॉर द रोड, देन यू आर गोइंग फॉर द रेलवेज।
हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं इसलिए नहीं बना रहे थे कि चाइना जो है वहां पे इस्तेमाल करेगा, बट एट द सेम टाइम द फैक्ट इज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली डेवलप करता है। अगर अभी आप कह रहे हैं कि जो हम आर्मी को पहुंचा रहे हैं वो इग्लू की तरह बनाते थे, पहले बंकर्स ऐसे बनते थे, बिकॉज थ्रू आउट द टाइम द साइंटिस्ट हैज बीन वर्किंग, और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली जा रही है। पहले जो है जो हम जो चिप यूज किया करते थे या जो है जीबी यूज करते थे, हमें अलग से लगाना पड़ता था, फिर फोन में वही आ गया। जो फर्स्ट कंप्यूटर था अगर उसको हम कंपेयर कर लेंगे उसके मदरबोर्ड को और प्रेजेंट में कंपेयर करेंगे मदरबोर्ड को, तो देयर हैज बीन a lot of difference and that is the result of continuous scientific work. You can't compare that with the old कि यहाँ पे उस समय तो था नहीं, फिर तो हम उस एरा में भी जा सकते हैं कि जहाँ पे कंप्यूटर ही नहीं था और रिवोल्यूशनाइज करके जो है कंप्यूटर है, एंड दैट वाज आल्सो डन बाय द साइंटिस्ट। अगर बात कर रहे हो आज ब्रह्मोस की, आकाश की, तो आपको बात करनी पड़ेगी डीआरडीओ और सीएसटीज की, जिसको जो है इसरो को पिछली सरकारों ने बनाया, और बनाने के बाद में ये आज का तो है नहीं, आपको 1980 से चालू हुआ इस पे काम, तब जाकर के आकाश ब्रह्मोस आज जाकर के इतना स्ट्रॉन्ग हो रखा है। देन यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड दिस सेल बाहर। जब वो पहले काम ही नहीं होता तो नहीं होता, तो इसके जब आप क्रेडिट लेने जा रहे होते तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट न्यू द गवर्नमेंट हैज डन in this 11 years. If the government has anything to say that this is the new implementation done by the BJP government, it is revolutionary, तो समझ में आता है, पर ऐसा नहीं है। And it is the fact कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट अभी भी यूज कर रहे हैं। यही कारण रहा कि जब जो है चाइना अभी हमारे जो है ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में हम चाइना के अगेंस्ट में स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पाए, हम यूएस के अगेंस्ट में स्ट्रांगली नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि हम 131 बिलियन पर ईयर, सॉरी था वो था 131 बिलियन डॉलर पर ईयर हम जो चाइना से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये तो फैक्ट है, ये कैसे नहीं जो है डिनाई कर सकते हम। यूएस के सामने हम लोग क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि 191 बिलियन डॉलर पर ईयर हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टर्की को टारगेट कर पाए क्योंकि वो हमारे लिए इजी टारगेट था। हम अप्रोक्स 91 डॉलर पर बिलियन पर ईयर जो है उससे ट्रेड करते, तो हमारे लिए इजी टारगेट रहा। तो भाजपा गवर्नमेंट तब ये सेलिब्रेशन मना सकती थी, तब जब भाजपा गवर्नमेंट कोई रेवोल्यूशन ले आती, कोई जैसे कि पहले मिल्क रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आपने दे करके साइंटिस्टों नैनो यूरिया बनाया हुआ किसानों के लिए, आप उसको भी नहीं लेकर के चले जा रहे हैं। और मैं भी आना चाह रही थी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा हुआ था राजीव जी, इससे पहले जो आया हुआ था एमओयू के तहत जो है 1200 करोड़ गोरखपुर में, मैंने उसको भी जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये कियन डिस्टिलरी करके कंपनी है, जो कि प्राइवेट कंपनी है, ऑब्वियसली ऑफ आवर कंट्री ओनली। तो ये इसने अपनी यूनिट लगाई हुई है, वो 1200 करोड़ की है। मैं फिर भी मानती हूँ कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कंपनी तो लगी है। वो अलग बात है कि जमीन जो है सरकार ने प्रोवाइड कराई हुई है, 1200 करोड़ इस कंपनी ने अपनी यूनिट लगाने के लिए की हुई है। ये कंपनी वो है डिस्टिलरी जिसका अभी पता नहीं एग्जैक्टली वो करेगी क्या वहां पे गोरखपुर में रह करके, बट इसका काम तो ये है कि ये बनाती है, अल्कोहल बनाती है कंपनी को इंडस्ट्रीज के लिए। योगी आदित्यनाथ पे रोजगार कितना दे पाएगी ग्राउंड पे? योगी आदित्यनाथ जी ने फिर शुभतीर्थ मुजफ्फरनगर में उन्होंने फिर वो स्लोगन दिया, बढ़ेंगे तो कटेंगे, बढ़ेंगे तो कटेंगे। संत समाज के सत्संग में सबको संबोधित करते हुए किया कि बढ़ेंगे तो कटेंगे। कैराना का उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, कांधला का एग्जाम्पल दे दिया। कैराना में 346 हिंदू फैमिलीज जिस प्रकार से एक्सोडस हुआ, तो क्या ये अभी भी एक बहुत बड़ा फियर है, इसलिए योगी जी को कहना पड़ा बढ़ेंगे तो कटेंगे? एकता का संदेश नहीं, ये प्रदीप जी जो है कोई फियर नहीं है। ये जो है जैसे अनुज कीड़ा ने जो है बताया कि नहीं 1200 करोड़ एमओयू उसके तहत आया होता, अगर ग्राउंड पे इसका रिपोर्ट बहुत सही होता ना तो ये बात कर रहे होते। एक्चुअली दे डोंट, आवर चीफ मिनिस्टर डजंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट द उत्तर प्रदेश व्हाट ही हैज डन। मैंने आपके डिबेट में कई बार कहा था कि जो पीजीटी का एग्जाम 17-18 को संभावित है जून में, वो भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपके काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो कैंसिल हो गया हुआ है। अब कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि अगस्त में हो, जो कि 2022 में फॉर्म भरा गया हुआ था। और इनके पास में जब कुछ बताने को नहीं रह जाता तो इनके पास एक काम बचता है, वो ये बचता है कि वेज क्रिएट किया जाए। आपने शायद सुना नहीं होगा राजीव जी, अभी जो है बकरीद आई हुई थी, इससे पहले आपको पता होगा कि जब जो है रमजान के महीने चल रहे थे, तब कहा जा रहा था सरकार को इतनी चिंता थी मुसलमानों को लेकर के कि वो अपने घर के छत पे नमाज ना पढ़े,
क्योंकि अपने घर के छत से गिर सकते हैं ना, वो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, वैसे भले वो चले जाए टहलने वहलने के लिए, पर नहीं गिरेंगे। और उसके बाद में अभी जब बकरीद थी तो जो है एक और स्लोगन चला था उत्तर प्रदेश में, राजीव जी पता नहीं आपने सुना कि नहीं, वो कह रहे थे कि ग्रीन बकरीद मनाई जाए। और ग्रीन बकरीद कैसे मनाई जाए कि ग्रीन बकरीद ऐसे मनाई जाए कि जो है जो बकरे को वो लोग कुर्बान करते हैं उनको कुर्बान न किया जाए। पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि बकरा में ऐसा कौन सा चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि वो ग्रीन नहीं हो रहा है, कि जिससे जो है एनवायरमेंट को हार्म होने जा रहा है। वो तो जितनी भी चीजें है वो बायोडिग्रेडेबल है। ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार है इसके पास में नहीं है बताने के लिए कि हमने काम क्या किया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेज क्रिएट करने की कोशिश करती है। चला जाए जहां से वेज क्रिएट कर। योगी जी कह रहा कि यूपी उत्तर प्रदेश मेक्स 55% ऑफ इंडियाज मोबाइल। योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, 55% ऑफ इंडिया का मोबाइल यूपी में बनता है। 50% ऑफ टोटल मोबाइल कंपोनेंट्स पूरे देश का उत्तर प्रदेश में बनता है। 634 करोड़ का उन्होंने कहा सौगात किया है कोई नाथ संप्रदाय आगरा में। आगे जाके डिफेंस कॉरिडोर 6 नोड्स के बारे में बात करते हैं, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, आगरा। अडानी का जो कानपुर में 200 हेक्टेयर में सबसे बड़ा साउथ एशिया में लार्जेस्ट एम्यूनिशन मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या सच्चाई नहीं है पूजा मिश्रा जी? बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जो है ये जो डिफेंस को, जो मैंने कहा ना कि ये क्रेडिट उस चीज का बताए कि जो पहले से नहीं चलता चला रहा, जो पहले से चलती चली आ रही थी उसका इंप्लीमेंटेशन में भी आप फेल हो रहे हैं। मेट्रो ट्रेन हमने चलाई हुई थी, वो आपकी 80 करोड़ लेकर के टर्की की कंपनी भाग गई हुई है, जो काम बंद पड़ा हुआ है कानपुर में। और आप कह रहे हैं हम डिफेंस कॉरिडोर सिर्फ यही थोड़े बन रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस तो सारे कॉरिडोर तो सारे स्टेट में बनेंगे। और ये ऐसा नहीं कि आपकी योजना है, ये योजना पहले से थी, आपकी गवर्नमेंट बनी, आपकी बनती, किसी और की बनती, किसी की भी बन रही होती, तो कुछ योजनाएं जो पहले से लागू हैं वो इंप्लीमेंट होंगी। आपको तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी न्यू योजनाओं को लाने की, उसके बाद में उनको इंप्लीमेंट करने की, जो पुरानी योजनाएं थी उनको जो है कंप्लीट करने की। पर आप पुरानी चीजों को ही कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, नई चीजें आप और लेकर के आ रहे हैं। और अगर ये इतना काम हो रहा है, अगर 55% ऑफ द इंडिया फोन आर मैन्युफैक्चर हियर इन उत्तर प्रदेश, देन व्हाई द मोस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ आर इन हियर इन उत्तर प्रदेश? ऐसा नहीं है कि सबको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, दे वांट जस्ट जॉब। अगर आप जो है प्राइवेट कंपनी का भी कोई जॉब निकाल करके देखेंगे, वो क्रॉस चेक कर लेंगे, तो वो वहां पे अप्लाई कर रहे होंगे, दे आर रेडी टू डू एनी जॉब। पर जॉब तो हो, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है कि जब यहाँ पे काम हो रहा था, कोई भी काम होती है उत्तर प्रदेश में, वो समझ में नहीं आता कि उसका टेंडर किस तरीके से किया जाता है कि वहां पे उत्तर प्रदेश में आकर के हमेशा गुजरात की कंपनियां ही काम करती है, ना तो उत्तर प्रदेश के लोग। मुझे लगता है कि नहीं लगता है कि सरकार को कि उत्तर प्रदेश के युवा इस लायक है उनको काम दिया जाए। उनको काम बिहार से मिलता है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई थी, आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मोर देन 50% ऑफ द न्यू अपॉइंटेड टीचर्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली। उत्तर प्रदेश के लोग अलग अलग जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं। और ये जो पता नहीं कहां से इन्होंने ये इनको डाटा का खेल करना आता है राजीव जी। डाटा का खेल ऐसे करना आता है जैसे कि इन्होंने 25 लाख लोगों को वो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया ना। कैसे निकाल दिया गरीबी बाहर से रेखा से? बहुआयामी मापदंड ला करके, मल्टी डिसिप्लिनरी जो है ला करके जो है इनको बाहर निकाल दिया गया। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा करके, उनका लाइफ स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा करके, और जो एक अलग डिस्पेरिटी ऐड कर दिया कि हाँ इतनी चीजें अगर अवेल है तो ये जो है बाहर हो जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये सारे आंकड़ों के सामने खेल करते हैं। इन्होंने लोन दे दिया, अब ये रोजगार इनका चालू हो गया हुआ है इनके हिसाब से, पर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको काउंट नहीं करेंगे कि नहीं ये खत्म हो गया हुआ है। मैम 1 सेकंड, आई थिंक अंबेडकर साहब वांट्स टू रिबट। अंबेडकर साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड सर। गोपाल तिवारी जी, उसके बाद में आपके पास आता हूं, प्लीज गो अहेड सर। नहीं, बेसिकली जिस व्यक्ति को अपने अज्ञान में बड़प्पन लगता है, ऐसी व्यक्ति मैंने पहले ही देखी। ये जो दारिद्र्य रेखा के ऊपर की बात कर रही है वो 25 लाख नहीं है, ये 27 करोड़ लोग हैं। और ये 27 करोड़ का आंकड़ा हमने नहीं तैयार किया, ये आंकड़ा वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया है। ये मापदंड हमने तैयार नहीं किए।
यूपी में तैयार नहीं हुए। ये यूपी में बैठे लोगों को लगता है पूरी दुनिया यूपी में तो सहमति हुई है, मल्टीडिसिप्लिनरी तो जो दुनिया है उसके बाहर आपने भी FIR ना, है, उसके बिल्कुल बाहर नहीं, भी है। उस डेफिनेशन में और बदलाव लाया वर्ल्ड गया हुआ बैंक है। जो आप है, अगर आपके घर में कोई वर्ल्ड बैंक यूपीएससी का की नाम तैयारी कर सुना रहा मैम, है, you asked him not to interrupt you. मुझे बोलने ये जब दीजिए चेंज आया है मैडम, तो उसको अभी बकायदा मेरा टाइम स्टेटमेंट है। Ma'am, you had asked him not to interrupt you. अभी मुझे बोलने दो। पूजा मिश्रा जी। बिल्कुल ना, ये आपने जो गड़बड़ पढ़ा नहीं मैंने है। सुन ली। पूजा अभी आप मिश्रा जी, मेरे को सुन please, लो, मुझे भी please। सुनने का देखो। जी, अभी बोलिए आपने ना। नहीं, गड़बड़ मैं की सुन बहुत लूं, की। बस आप जो झूठ यूपी मत में बोलो। जो Just आपकी counter जो me. But that is your Counter me with definition, facts. ma'am. Counter me with ये जो facts. 37 Ma'am, but that is your definition. करोड़ का आंकड़ा है, Please. ये जो 27 करोड़ का आंकड़ा है, वो आप 27 लाख बोल रही, इतनी तो आपकी बड़ी समझ है। और आप ये समझ लो, ये आंकड़ा भाजपा ने नहीं निकाला है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है। वर्ल्ड बैंक करके नाम सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा तो गूगल में जाके देखो, वर्ल्ड बैंक ने ये आंकड़ा निकाला है। और बहुआयामी जो थीम है, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये थीम हमने नहीं निकाली, ये पूरे वर्ल्ड में चलती है, जिसमें एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, जिसमें फूड आता है, जिसमें रोजगार की संधि आती है। ऐसे बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये जो रिडक्शन है, ये वर्ल्ड बैंक ने हिसाब से भारत ने किया है। अभी मल्टी आयाम क्या है, उसमें घर होना चाहिए, तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर दिया है। जी, हेल्थ आती है उसमें, तो हमने ये जो पूरी प्रधानमंत्री की जो हेल्थ स्कीम है, उसके तहत जो पूरे बीपीएल के नीचे के फैमिलीज है, उनको आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ स्कीम दी है। बाद में उनमें ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिडक्शन में, उसमें हमने हर घर नल से जल में 12 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाया है। बाद में उनके हेल्थ का इशू है, तो हमने उनको सैनिटेशन का इशू है, तो हमने उनको स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट्स दिए हुए। बाद में उसमें एजुकेशन की सोच है, तो एजुकेशन की हमने सब पूरे दुनिया को, पूरे जो जितने पिछड़े हुए वर्ग है, उनको सब फैसिलिटीज दी हुई है। तो आप ये समझ लो कि ये हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, ये वर्ल्ड बैंक ने उनके खुद के रिसर्च के हिसाब से डिक्लेयर किए हुए फिगर्स है। आपको भले उसको ना ये होना है, मालूम नहीं है, तो आप भले मालूमात करके ले लो। अभी आपने बोला कि ये जो मुद्रा लोन है ये फेल्यूर है, ये आपकी जानकारी रहेंगी। मुद्रा लोन फेल्यूर होने का कोई चांस नहीं है, और उसमें जो फेल्यूर रेट है वो बाकी के लोन्स जो रहते हैं उसमें भी फेल्यूर रेट जो है वो सब जगह रहता है। ये इंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मैडम, ये आप समझ लो। और आप जो बोल रहे मोदी सरकार ने नया क्या किया, खुद का क्या इन्वेंशन किया, तो मैं आपको बोलता हूँ यूपीआई सिस्टम जो आप यूज करती है ना, ये मोदी गवर्नमेंट का इन्वेंशन है। और आज यूपीआई सिस्टम पूरे वर्ल्ड में मानी गई है। आपके जितने भी 60 साल की सरकारें थी, उन्होंने गरीब आदमी को बैंक तक नहीं पहुंचाया था। मोदी सरकार पहला है जिन्होंने जनधन योजना के तहत 52 करोड़ लोगों को बैंक तक पहुंचाया है, उनको बैंक की फैसिलिटी मिला के दी है। और जैम ट्रिनिटी, जनधन मोबाइल, और ये जो चीज़ है ये मोदी सरकार की है। मोदी सरकार ने पूरे ये जो ग्राम पंचायत है उनके इधर ये जो केबल पहुंचाई है। और इंटरनेट जो है आपके ज़माने में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो 2G में अटकी पड़ी थी, मोदी सरकार ने इनको 3G, 4G, 5G और 6G तक पहुंचाया है। तो मोदी सरकार ने ये किया है। आपके सरकार में खाली सैफई में डांस हुआ था, हमने सैफई को पूरा बदल के उनके जो गरीब लोग थे उनको डांस नहीं दिखाया अपने नेता के जन्मदिन पे, किसी बॉलीवुड के एक्ट्रेस को बुला के डांस नहीं किया, मगर हमने उन जो गरीब परिवार थे उनको पूरी जो जीवन के लिए सुविधा है, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना है, हर घर नल से जल है, बाद में आयुष्मान भारत है, बाद में 80 करोड़ लोगों को फूड सप्लाई है, ये सब चीजें की करके वर्ल्ड बैंक को लगा कि भारत के 27 करोड़, वो भी आप ध्यान से रखो कि 27 लाख नहीं, 27 करोड़ लोग दरिद्र रेखा के ऊपर आए हैं। और ये हमने नहीं किया है, ये वर्ल्ड बैंक ने किया है, जरा स्टडी करो जी। एंड लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी जी। गोपाल तिवारी जी, वन स्मॉल थिंग, आर्मी के बारे में बात हो रही थी, आर्म फोर्सेस के बारे में बात हो रही थी, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पूजा मिश्रा जी ने कुछ बात कही नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि क्या टेक्नोलॉजी थी वगैरह वगैरह वगैरह, बट द फैक्ट इज
At the end of the day, whosoever is in power gets the credit. Let's be very clear. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मंगलयान था, मोदी जी ने खुद बोला था मेरी किस्मत में था, मेरी किस्मत में था, इसका श्रेय लेना इसलिए मैं ले रहा हूं. Let's be very clear. Now, this is something we have discussed even earlier, Gopal Tiwari ji. 1973 में आप लोगों ने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया, आपने रिवॉर्ड किया, आपने पुरस्कृत किया हमारी आर्म फोर्सेस को, आपने वन रैंक वन पेंशन जो है एड हॉक तरीके से उस पर बैन लगा दिया, उसको विड्रॉ कर लिया इंदिरा जी ने. वन रैंक वन पेंशन वॉज विड्रॉन इन 1973 in an ad hoc decision by Indira ji without consulting anybody at all. उसको पूरी तरह तो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन 70% लागू हो गया सर. फौजियों को अब जाकर के they've got their dignity back, they've got at least some good pension. जो ऑफिसर से बेचारे they can live like officers. Sir, my entire family, most of the family consists of फौजीज. उनको जाकर के अब जो पेंशन मिल रही है 2015 के बाद, for the first time they can afford a lifestyle where they can live like officers. अब आप बोलें गोपाल तिवारी जी, प्लीज गो अहेड. हाँ सर, उससे पहले अभी जो हमारे विनायक अंबेडकर साहब बिलो पॉवर्टी लाइन का जो बता रहे थे 26 करोड़ का, 27 करोड़ सर, 1 करोड़ कम मत कीजिए. तो उसमें उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ. 27 करोड़ आप देख सकते हैं, नीति नॉट अ वर्ल्ड बैंक सर, वर्ल्ड बैंक का कोई लेना देना नहीं है. कौन भी ये जो नीति आयोग ने बताया है कि भारत में ऊर्जा योजना के तहत जिसको गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन दिया है और टॉयलेट दिया है, वो 25-26 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं. अभी नीति आयोग तो किसने बनाया आप जानते, पूरा देश जानता है, इन्हीं के लोग बैठे वहां पे. तो ये सब जो है ना क्राइटेरिया, ये और किसी को बताइएगा, ये झूठ परोसने में माहिर है ये लोग सब. तो ये नीति आयोग का दाखला है, ऑफिशियल है, आप नेट पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं. इन्होंने कहा अभी कई लोग उसमें ऊर्जा जो योजना है, ऊर्जा योजना के तहत जिनको गैस सिलेंडर और गैस सेगड़ी दी गई है, उसमें से मोर देन 78% जिन्होंने वापस लिया ही नहीं. एक बार सेगड़ी थमा दी उनको गैस कनेक्शन, लेकिन उसके बाद वो दे वेर नॉट इन अ पोजीशन टू परचेज द गैस सिलेंडर. ये फैक्ट है. और आप क्या कह रहे हैं सर, और आज इतना सब कुछ अचीवमेंट है, व्हाई डोंट यू टेक ए सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड गिव द आंसर ऑन विद डिटेल्स. अभी भी जो फडणवीस जी थे, इन्होंने कहा था कोट्यावधि लोगों को वंचित. अरे व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोट्यावधि यार, ये कोट्यावधि का क्या मतलब है? और कोट्यावधि लोगों को, वंचित लोगों को अनुदान दे दिया, कोट्यावधि आयुष्मान लोगों को ये दिया. आज पुनः बंबई में कहाँ आयुष्मान योजना की है? अभी जो मंगेशकर हॉस्पिटल का ये कांड हुआ, सब में आ गया. कहाँ पे बताइए आप मेरे को, पुनः बंबई नासिक में कहाँ पे आयुष्मान योजना की फैसिलिटी है? देखो बताइए आप. कुछ भी नहीं, हवा में बातें कर रही है. ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना. आपकी अकाउंटेबिलिटी है, अगर आप करते हो तो वी सैल्यूट, वी हैव टू सैल्यूट, लेकिन आप कुछ कीजिए और सही तरीके से बताइए. ये झूठ क्यों परोस रहे? और आपका जो जीडीपी का क्राइटेरिया गलत है. आपके नहीं, आपके जो खुद के जो एडवाइजर थे उन्होंने रिजाइन दिया है. उर्जित पटेल कहाँ गए? आरबीआई छोड़ के क्यों गए? आपके बी सुब्रमण्यम क्यों गए? 2-3 सलाहकार जो आर्थिक सलाहकार थे प्राइम मिनिस्टर के, वो सब रिजाइन दे के क्यों गए? उन्होंने कहा कि ये गलत नीति और गलत तरीके से ये जो क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो सब गलत है करके. आप क्या बात कर रहे हैं? गोपाल तिवारी जी, आई एम रीडिंग अ प्रेस रिलीज फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एज कोटेड बाय द ट्रिब्यून of 5 days ago. Excuse me, sir, you had said इसमें वर्ल्ड बैंक का कुछ लेना देना नहीं है. Around 27 crore people were lifted out of extreme poverty in India over the past 11 years, from 2011 to 2023, says new data released by the World Bank. ये तो वर्ल्ड बैंक का रिलीज है. Because of नीति आयोग applied that criteria first, then only. मैं भी दिखा रहा हूँ. जब नीति आयोग ने ये डिसाइड किया है कि हम डिसाइड, we are going to कांग्रेस के लोग है ना, ये पागल हो गए हैं मोदी विरोध में. इनको नेट पे भी भरोसा नहीं है. सर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सर, दिस इज अ वर्ल्ड बैंक प्रेस रिलीज. क्या कर रहे हैं आप? सर, मेरे पास है. आई गॉट द डॉक्यूमेंट यू रीडिंग आउट फ्रॉम.
It is सर, with me. सर ये पागल हो गए मोदी Sir, के what are you पीछे। talking, sir? नीति क्या बोल नीति रहे हैं आयोग सर? ने ये उसका मोदी- लगाया पहले। गोपाल जी पागल हो देखो, गए। दोनों बीजेपी रूल स्टेट्स, गोपाल जी यहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट डेट बता दिया। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का टारगेट बता दिया। देवेंद्र फडणवीस आगे जाके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2047 का टारगेट। तो ग्रीन पावर, डिजिटल इनोवेशंस, हर चीज इनके प्लान तरीके से जा रहे हैं। मगर आज अब आप भी, अभी राहुल गांधी जी वही अटके हैं कि इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया इज अ फेलियर वगैरह वगैरह। और हाल एचएएल का आंकड़ा बीजेपी ने दिया है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, and today HAL is recorded a huge profit, they say of some 36,000 crores. Today HAL के revenues अपने आप बढ़ गए जब 2018 में राहुल गांधी जी ने कहा कि it's a failed project. Now things, don't you think the Congress should change and accept? गोपाल जी सर, इनका राहुल जी ने इंटरनेट भी पहले हैक भी हो गया। बताया था, मैंने सर, उनका इनका स्टेटमेंट इंटरनेट यही हैक हो चैनल गया। पे पहले पढ़ के बताया था कि हम कैसे चाहते हैं, हम लोगों के इंटरेस्ट में इकोनॉमी का उसका लाभ होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों के पास पूरी पूंजी जमा हो दे और उसका Sir, what about HAL? इकोनॉमी पावर बने। लेकिन देखो हमारे लोकल में लोग मर रहे सर, हमारे लोकल में लोग ऐसे मतलब सर, पहली बार हुआ है क्या? हमारी क्या सुविधा है, पहली बार हुआ है? क्रैश हो रहे हमारे ऊपर अटैक, क्या मतलब है, कहाँ सेफ्टी है हमारी, कहाँ मतलब I agree with you, महंगाई sir. तो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको suddenly बढ़ रहा है और बिल्कुल उसका वो जो safety याद आनी economic चाहिए। का फायदा जो होना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो कहाँ हो रहा है सर? ये सब होना चाहिए ना। हमारी कहाँ से, हमारे लोकल तक सेफ्टी नहीं है, ट्रेन जर्नी सेफ्टी नहीं है, हमारे एयर इंडिया जैसा बिग गोइंग वहां पे हम एयरपोर्ट देते हैं तो जो GMR जैसे स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो जिन्होंने मेंटेन किया है वो सब छोड़ के हम उसका जो एक कंडीशन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का अनुभव होना चाहिए, वो सब छोड़ के अडानी को एयरपोर्ट दे रहे हैं। हम जो सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, हम क्या कर रहे हैं सर? ये हम ये सब जो हमारी सेफ्टी, हमारे लोगों की सेफ्टी कहाँ है, कहाँ मेंटेन हो रही है, वेयर इट इज मेंटेन, हमारी सेफ्टी, लोगों की सेवा, और ये कहाँ हो रहा है लोकल में? But the fact is that the World Bank gave out a press release, sir, and this is a press release of 5 days ago. 5 दिन पहले का press release है सर ये World Bank का. You can go to the World Bank site and take a look at it. That also says 27 crore people, Sir, ये 270 झूठ बोल रहे million हैं। people. Yes. सर क्या? ये मोदी के विरोध में पागल हो गए। मोदी का विरोध ये नहीं, मैं पागल दिखा नहीं, रहा हूँ, मोदी इसके ऊपर बात करने दो। देश को ये पगला इनको- रहे हैं ये सर। इसके What- ऊपर बात करो। मोदी का क्या इसके संबंध है ऊपर उसमें? बात मोदी करो। का क्या है? हम दोनों What दिखा is रहे हैं मोदी? तुमको। ये अरे बोल कुछ सकते कि समझता है क्या नेहरू तुमको? का पढ़े इनको लिखे है क्या ये तुम? है, एक समय पढ़े देख के लिखे फिर है क्या? नेहरू कुछ इंजीनियरिंग पढ़ने को को आता है यूज क्या करेंगे। तुमको? Sir, the fact तो remains- नहीं है ना। इसके ऊपर गोपाल बात तिवारी करो ना। जी, पूजा मिश्रा जी इसके और ऊपर बात करो विनायक ना, अंबेकर ये साहब। वर्ल्ड बैंक का है। क्यों विनायक झूठ बोल अंबेकर रहे- साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं गोपाल जी? इसके विनायक ऊपर अंबेकर बात करो ना साहब, the भाई। fact remains, ये दिखा रहे, हम दोनों दिखा रहे हैं तुमको। जी। तुम्हारा इंटरनेट हैक हो गया, सोरोस ने हैक किया तुम्हारे इंटरनेट। पूजा मिश्रा जी उनके wanted to say इंटरनेट में something. झूठी बात सर आती है। सर सर नीति आयोग ने लगाया ये पहले। अच्छा, ठीक है, सर। क्या नीति नीति आयोग कर रहे हैं? ये दिखा रहे हैं हम तुमको। इसके पूजा ऊपर मिश्रा बात जी, करो you wanted ना। to say something, बोलिए। इसके ऊपर बात करो ना, कुछ है तो पढ़ा है तो। अंबेकर साहब एक सेकंड, I would like to hear what पूजा मिश्रा जी has to say. पॉपुलेशन के चलते, पॉपुलेशन के हिसाब से इसके ऊपर बात करो भाई। जो सेफ्टी जर्नी चाहिए, ट्रेन की गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड। गोपाल तिवारी जी, क्या बात कर रहे हैं Please. पागल जैसी कहने का है। मतलब है कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा अरे है, मोदी जो को गरीब है विरोध गरीब करो, होता which is चला true, जा रहा ma'am. है। मत ये भी बोलो। वही वर्ल्ड बैंक मोदी ने को कहा हुआ विरोध है, करो, which is जिससे quite हम true. नंबर 1 पे बोलो। जा रहे हैं। मोदी और को नंबर 1 पे विरोध अगर करो, पहुंचे मगर तो कोई झूठा मत बड़ी बोलो। अच्छी बात है भाई। मोदी के जो विरोध अमीर में अमीर झूठे हो जाए, जो मत गरीब बनो। गरीब होता चला जाए। Which is quite true, ma'am. इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है उसकी Ma'am, which is quite true. That has always been the case. अभी ये Nothing मैंने new. पहले बोला कि इनको खेलना बड़ा अच्छी तरीके से आता है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है राजीव जी। जी। तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहती है कि जब जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है तो जॉब में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पे देखा गया हुआ है कि जो हमारे भारत देश में जीडीपी में तो बढ़ोतरी हो रही है, पर जो जॉब है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हमारा जो जीडीपी है वो 1% रेट की तरफ से बढ़ रहा है, पर हमारा जो जॉब है अर्बन एरियाज में 0.1% है
और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, और जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज में वो नेगेटिव में है। तो ये कैसी जीडीपी बढ़ रही है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी को भी फिट नहीं कर पा रही है। तो ये कहां पे ले जाकर के कहां पे कौन सा डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, ये इनको पता। इतने माइन्यूट तरीके से टेक्निकल चीजों में बदलाव करते हैं कि वो दिखता बड़ा अलग सा है आंकड़ा, पर वो हकीकत मैम ऑन दैट अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज टू बी डन। नंबर 1 पे जाएंगे। पूजा मिश्रा जी, सर वी हैव गॉट इट। अंबेडकर साहब को देख लिया हम सब लोगों ने, थैंक यू सर। बट पूजा मिश्रा जी, अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज टू बी पहले डन। माफी मांगने दो। नहीं सर, वो जो फैला रहे हैं नीति आयोग के नाम पे, उनको पहले माफी मांगने सर दो। सर वेरी सिंपल। न्यूज सही है क्या झूठ आपने है, नीति पहले आयोग में बोलो। मल्टी बोलने दो डायमेंशन उनको। जो है लेकर के ही आए हुए हैं। आप लेकर के, आप नहीं लेकर के आए थे तब तो वर्ल्ड बैंक आकर के नहीं कह रहा था कि जो है आपने इतने लोगों को बाहर कर दिया। जब आपने मल्टी डायमेंशन लेकर के आए नीति आयोग में, वर्ल्ड बैंक आकर के नहीं कहा था। आप माफी मांग रहे हैं क्या कि के शेप है वर्ल्ड बैंक कह रहा है। जब बात करते हैं all three of you, I would like to say decided by नीति आयोग only. It was decided by नीति आयोग only. और then वो उनका रेफरेंस वर्ल्ड बैंक दे सकती है। एक छोटी सी चीज है, एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन अ वेरी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एज आई कीप टेलिंग एवरीबडी, I am here at the moment, Pradeep ji and I are here at BKC, Bandra Kurla Complex. मैम आप नीचे चलिए, कोई रेस्टोरेंट यहां पर नहीं है जो फुल नहीं है, और बाहर वेटिंग में लोग। और कौन से रेस्टोरेंट्स? नॉट नॉर्मल रेस्टोरेंट्स विद बार्स, एंड वन ड्रिंक ओवर हियर बाय द वे कॉस्ट ओवर 500 रुपीज। 500 रुपए से कम कोई ड्रिंक नहीं है वैसे, बाय द वे, दैट टू छोटा बैग, बड़ा वाला नहीं। एंड यू शुड सी द यंग पीपल हु आर वेटिंग आउटसाइड। I'm talking about Bombay. So which means when people have money, the capital city of our nation. Ma'am. You're thinking what you're comparing. man, this is a microcosm. Mumbai is a microcosm, which means there is employment. पूजा मिश्रा जी, विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी। Still world doesn't accept that we are fourth by Japan and all that. It is called that we are fifth पांचवी अर्थव्यवस्था है हम। चारवीं हमको, हमारे देश भी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक छोटी सी बात बोल दूं सर, पांचवी है। अरे एक सेकंड गोपाल तिवारी जी, अरे गोपाल तिवारी जी, आप एकदम एक डायरेक्शन में चल पड़ते हैं सर। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वी आर वे बिहाइंड। लेकिन सर आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, आज की तारीख में किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है सर? एक किसी भी हिंदुस्तानी के ऊपर तकरीबन कोई $12,000 का डेट है। आपको मालूम है एक जापानी के ऊपर कितना डेट है? ओवर $102,000। 14 के बाद सर क्या बात बोल रहे हो सर? अरे सर क्या हालत कर दी हमारे देश की, क्या हालत कर दी सर? अरे पूजा मिश्रा जी, I want to ask you, पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ claims that विकास भी और विरासत भी has been a great success in उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ के बाद, नहीं एक एग्जांपल, महाकुंभ के बाद 12 इकोनॉमिक कॉरिडोर, 5 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर खुला हुआ है। पूजा मिश्रा जी, 5 नया इकोनॉमिक कॉरिडोर यूपी में खुला हुआ है आफ्टर द महाकुंभ। नो, एक इस प्रकार से फंक्शन करने के बाद विकास भी विरासत भी संभालते हुए जबरदस्त एक इकोनॉमिक बूम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पूजा मिश्रा जी, अगर जो है इलाहाबाद जैसी सिटी जहाँ पे महाकुंभ हुआ और जो कि भारत देश की एक दिन के लिए राजधानी रही, मैं जब से डिबेट कर रही हूँ यहाँ करंट नहीं है, शाम के 6 बजे से गई हुई है, पूरे दिन नहीं थे, इन्वर्टर सबके बोल चुके हुए हैं। और अगर ये हालात, ये आज के नहीं है, ये रोज के हैं। अगर आपको लाइटिंग डिफरेंस फील हो रहा होगा कि नहीं, पता नहीं, मेरे आज करंट नहीं है, मैं 4 डिबेट पता नहीं चलते खताते है कि नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि करंट नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल नहीं है, सुबह से नहीं है, और नहीं, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है, और ये ऐसे ही चल रही है। तो पूछते हैं कि आप रहते कहाँ पे हो, सर पूरा राम भरोसे सिक्योरिटी है सर। फ्लाइट की, बोइंग एयर इंडिया जैसी फ्लाइट का क्रैश होता है, क्या पता है सर आपको?
क्या लोकल पता में मतलब? बम्बई जैसे What does that 11-11 mean? साल क्या हो पता गए है? इनको, स्टेशन के सिर्फ नाम बदल देंगे, हाँ, ना हाँ। सेफ्टी है ना कुछ Sir, है, Japan's ना debt per प्लेटफॉर्म capita, का डेवलपमेंट है, ना रेल latest बजट figure. था, रेल बजट सर उसका इम्पोर्टेंस था, वो रेल बजट भी उसके ऊपर बात गोपाल होती तिवारी थी, जी। वो रेल बजट के बहाने हर कोई सांसद अपने अपने सर, अब मैं क्षेत्र एक्सीडेंट में रेल बताऊं का किस तरह आपको। विस्तार हुआ उसके ऊपर बात करता था सर। जब रेल बजट अलग था तो उसकी एक अहमियत थी, रेल के डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा होती थी, और रेल बजट और अभी तब भी आपने implementing कभी करते हैं तो उसके भी ऊपर कुछ होता ही और नहीं। तब भी आपने कभी भी मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क के लिए कुछ नहीं दिया। मुंबई सबर्बन रेल नेटवर्क ने 1995-1996 में प्लान सबमिट करी थी कि भैया एक फीजिबिलिटी स्टडी कैरी करो सो दैट वी कैन हैव एन एलिवेटेड कॉरिडोर। आपने उसको परमिशन नहीं दी, किसी भी सरकार ने, ना इस सरकार ने दी ना आपकी सरकार ने दी, किसी ने नहीं दी। सर क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि दैट वुड हैव बीन इन द कंट्रोल ऑफ द रेलवेज। किसी मंत्री को कुछ खाने को नहीं मिलता, सीधी सादी बात है। इसलिए आप यहां पर मेट्रो बनाएंगे, कोस्टल रोड बनाएंगे, पता नहीं क्या कुछ बनाएंगे, सीधी सादी बात है। एंड देन अगेन पूजा मिश्रा जी, ये रिसर्च का विषय है मैम, जरा सुनिए, रिसर्च का विषय है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास आता है विच इज लेस देन 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ के कम का जो प्रोजेक्ट होता है ना मैम, उसको 5-6 साल लगते हैं ओके होने में। जब कोई 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है ना मैम, इट इज ओके विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर उसको ओके मिल जाती है। दैट हैज बीन ट्रू इन इंडिया राइट फ्रॉम द स्टार्ट अप टिल टुडे। वी नीड ऑनेस्ट गवर्नमेंट, वी नीड ऑनेस्ट पीपल। एटलीस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स कलेक्टर साहब के 5% फिक्स थे, लेकिन वो ये बोलते थे कि तू अपनी पूरी जो भी टेंडर फाइल करेगा उसमें 100+5, जो 5% मेरा है वो अलग, प्रोजेक्ट के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेट्स बी वेरी क्लियर। इसलिए आज भी अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज मैम वैसे के वैसे ही खड़े हैं, वैसे के वैसे ही खड़े हैं। इट्स शेमफुल व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स बी वेरी क्लियर। Right, thank you, Gopal Tiwari ji, thank you very much for joining us. Thanks. Always a pleasure having you on. Pooja Mishra ji, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबेकर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very Thank you, much. thank you, God bless Gopal you ji. all. Thank you, Pooja नमस्कार, ji. नमस्कार, Thank you so thank you. much. Well, that was nice. And incidentally, I think Iran has bombed Israel again. That's what I've been told. And See, sometimes, sir, we feel when we were discussing, the ceasefire has come at the right time. India ceasefire? Yes, I'm talking about Indo-Pak. Indo-Pak. सर इंडिया सीजफायर तो बिल्कुल राइट टाइम पे आया। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, मैं तो मानता हूँ The कि मोदी जी ने जो कुछ बोला ना बिल्कुल ठीक ठाक किया। The उसी टाइम पे disengagement. फटाफट डिसएंगेज कर लो भाई। Disengagement at a later stage would have been impossible. Then it would be fight to finish or fight to the last bullet. I mean, these things happen. Now, I don't think they're going to can control Iran and this. Israel. I think this will escalate, sir. This is going to escalate. It's going to escalate into something which will be completely uncontrollable. Let's be very clear. As Well- far as India is concerned, we have got out, and the Pakistanis should also be grateful. They have also got out at just the right time. That's it. And by the way, this thing is हिंदुस्तान का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी बड़ी वाहवाह हुई है हर जगह पे, मोदी जी की लीडरशिप की बड़ी वाहवाह हुई है। एंड द अदर पार्टी, प्रदीप जी, विच हैज रियली गेन्ड इन पाकिस्तान इज द पाकिस्तानी आर्मी। ये 3-4 दिन की जो हमारी लड़ाई हुई है, द आर्मी हैज गॉट इट्स होल्ड बैक ऑन द एंटायर कंट्री once again. So I hope we'll have some stability. It is a bluff to call Pakistan a democracy at any time. It's not a democracy. It is completely ruled by corrupt generals, the Yeah, corrupt Pak army, and they decide whom to put on the throne, किसको बिठा दे pedestal पे और राज करे. Nothing जी। happens. सर वो पुरानी वेस्टर्न्स होती थी ना, and we used to see all those Mexican generals who were looting the people, etc., etc. I think they've all been inspired by all those John Wayne westerns, all these guys. So, very frankly. Even US knows, आप आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाओ और उससे भी ऊपर कोई पद है वो भी दे दो. जी. As long as he can deal with us and Why we can deal with 4-star him. general? Make him a 14-star general. ऐसी क्या बात है? और पूरे दुनिया के जनरल बना दो उसको, फील्ड मार्शल बना दो. That's right. That acceptable because as long as they can control Pakistan. Give him an American award also. American Gallantry Award. The US Congressional Medal of Honor भी दे दो उसको. 3 दिन की लड़ाई के लिए, ऐसी क्या बात? Where is the problem? Right, that's just about it. As far as tonight's show is concerned, आज के शो में सिर्फ इतना ही.
आप प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। And before we go, there is Pradeep ji, आप कुछ बोल, आप हमेशा No, even the Russian Ukraine war, even when they were sitting for ceasefire, you had them bombing each other. That's right. And today it's gone beyond control. Now it's gone beyond control. So you have these you have these basic major conflicts now occurring all over the world. So which means effectively Third World War has already started. It seems Effectively. So we'll be very lucky if we stay out of it. We have at least temporarily managed to stay out of it. And we should stay out of it. Because whatever destruction we had to cause, we caused and we have come back. That's right. अब यहाँ पर एक दूसरी चीज आती है प्रदीप जी कि 11 साल के जो मोदी जी के हैं, अब मेरा ये कहना है कि जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल है, व्हाई डू हैव टू रन डाउन एवरीथिंग, व्हाई डू हैव टू डिक्राई एवरीथिंग, भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे मोदी जी खुद कहते हैं ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। वो वाजपेयी जी के 5 साल हैं, वो भी डाल देते थे बीच में, और अपने भी 5 साल लगा लेते थे। मेरा ये कहना है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर, एवरी गवर्नमेंट, विच एवर गवर्नमेंट हैज बीन इन पावर एक्सेप्ट आई थिंक 1 or 2, वो बेचारे बहुत कम दिनों के मेहमान थे। जैसे चंद्रशेखर जी की सरकार हुई, आई के गुजराल की सरकार हुई, उनको आप काउंट ना करें। बाकी जितनी भी सरकारें हुई हैं प्रदीप जी, हर एक ने देश के लिए काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ द पॉइंट इज मिस्टर मोदी हैज ब्रॉट, मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इंडिया फ्रॉम द 11th largest economy to the 4th largest economy. There is no doubt about it. इसके ऊपर मतलब झगड़ा करने का क्या मतलब है? And it is the World Bank which has given a press release which said 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बाहर निकाला गया है हिंदुस्तान में। अब इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, हमें ये समझ में नहीं आता। यस, लॉट्स एंड लॉट्स नीड्स टू बी डन। आपने नल हर जगह लगा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाया, अब वहां पे पानी आने की देर है, लेकिन कई जगह में पानी आ चुका है। एज आवर एडमिनिस्ट्रेशन हेड had just come back from the village and she said कि पहली बार, एंड वो हिल एरिया में है, पहली बार उनको नल से जल मिला वहां पे, और बिजली भी आ रही है, बिजली गई नहीं वहां पे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत जगह पर प्रोग्रेस तो हुई है ना सर, ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं हुई है। एंड टाइम बाउंड प्रोग्रेस, टाइम बाउंड, और बहुत जगह पर प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे अभी अभी पूजा मिश्रा जी बता रही थी, वो प्रयागराज में है यानी इलाहाबाद में है, वहां पर अभी बिजली नहीं है। नहीं है, करेक्ट है, नहीं है, क्वाइट ट्रू, बट द पॉइंट इज वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। There's lots and lots to be done. I agree with you, but at least appreciate whatever has been done. That's it. And जहां तक रोड्स का सवाल है प्रदीप जी, मैं फिर आपको बताता हूं। कच्छ में और लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में सर रोड नेटवर्क जो है वो नितिन गडकरी जी ने बनवाया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, भले कोई जो मर्जी कुछ भी कह ले, इट वॉज अ डिलिबरेट इंटेंशनल decision on the part of the previous governments that they will not make this road network, क्योंकि उनको ये लगता था the Chinese might use it to come inside Indian territory. इसलिए what they forgot was that we would be able to get so much of equipment up, so much of weapons up, that we would not allow the Chinese even a foot in edgewise. So that's been the change. मेरी समझ में मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़ा चेंज हुआ है भारत में। क्या चेंज हुआ है? मोदी जी के आने के पहले हम लोग रहते थे 2 बीघा जमीन, ब्लैक एंड व्हाइट, बलराज साहनी मरते हुए, भारत भूषण, सत्यजीत रे की बात चली। अब मोदी जी के एरा में हम लोग आ गए हैं, वी आर इन द एरा ऑफ 3 इडियट्स, पठान, जवान, टाइगर जिंदा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड छावा। ये है डिफरेंस दोनों के बीच में। सर, डिजिटल रेवोल्यूशन, नाउ इंडिया इफ यू से 80% पुअर, जिस प्रकार से, बट आज के तारीख में 1 crore per second digital UPI using, the biggest problem in the world. It is the biggest. Yes. Sir, 80% नहीं सर, 1 crore per second. प्रदीप जी, Per second 1 crore people are dealing, 1 crore का transactions हो रहा है। सर सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में खाना मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हैं, इसका मतलब ये है कि उनको खाने के ऊपर पैसे नहीं खर्चने पड़ रहे हैं। सीधी सादी बात है। 80 crore people if they are getting food does not mean that they are the poorest of the poor. It is just that they don't have to spend money on food. They can spend that money on something else. And the government is taking care. That's it. What is the problem? I still don't understand. अगर आप गरीबों को खाना दें तो भी तकलीफ है, ना दें तो भी तकलीफ है। मतलब
मोदी जी अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें तो भी तकलीफ है, ना अटैक करें। आपको याद है जो 15 दिन लगे थे अटैक करने में, हर रोज बोल रहे थे डर गए, वो इंदिरा जी थी, देखो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वगैरह वगैरह वगैरह। और जब अटैक किया तो क्यों अटैक किया, और जब अटैक करने के बाद ऑल द ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड एंड वी एग्रीड टू अ सीज फायर, डर गए। देखो ये क्या है। इन एनी इवेंट वो तो है ना भाई, पुरानी कहानी है शिव पार्वती और नंदी बैल की, वही अप्लाई होती है यहाँ पे। दैट्स इट, that's all we've got for you in tonight's show, and please do again subscribe to the channel and comment, send in your comments. वो जो कल जो शो किया था प्रदीप जी रंधावा साहब के साथ, उसमें काफी कमेंट्स आए। आई थिंक वी शुड रीड देम ऑन मंडे। सोमवार को वो सब पढ़ेंगे हम लोग, especially with regard to the Air India flight 171 and the disaster that overtook it. We'll read those comments. And I think you had been able to establish the possible problems where the aircraft crash landed. They're absolute in that particular interview. Everything was very, very 1, 2, 3. all thanks to you and to Randhawa साहब. No, you did it. The questions आपने पोस्ट किया था, एक definite answers मिले कि this are the possibilities. और प्रदीप जी जाने के पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको, हिंदुस्तान के और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़े बड़े एंकर हैं, अब उन्होंने भी कुर्ता पहनना शुरू कर दिया है। वो दिन अब दूर नहीं है जब वो भी रुद्राक्ष पहनेंगे, मान लीजिए। एंड रिमेंबर यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। Yes. चलिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय